Hello friends, welcome to all of you in the Mangnade College classes. Myself, Professor Gunwant Mangnade. Yesterday in the last class, we discussed about the endomembrane system of the eukaryotic cell. So you know, endomembrane system in the eukaryotic cell consists of different cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles. They are all called as part of endomembrane systems, and today we will discuss about the other part of eukaryotic cell which is not included in the endomembrane systems are, first is mitochondria. Okay, remember mitochondria is generally found in the plant cell as well as animal cells or mostly eukaryotic cell. Exception of some cell like RBC, human RBC, as well as there are sieve cells in the plants having no mitochondria, but mostly the plants and animal cell having mitochondria in it. So what is mitochondria? It is also called as thread-like structure. Okay, or mitochondria is also called as powerhouse of cell. Why? Because mitochondria is the place where there is the formation of metabolic energy in the form of ATP. So ATP formation occurs inside the mitochondria, so it is called as powerhouse of cell. Okay, and this is also one of the important cell organelles found inside the eukaryotic cell, and that mitochondria made up of double membrane bound structure. Mitochondria consists of double membrane bound structure. Okay, this is the structure of mitochondria. It is made up of double membrane bound structure, outer membrane and inner membrane. Outer membrane and inner membranes are present, and it is clearly visible when the stained up. Mitochondria are clearly visible when they are stained up. Which stain is generally used for visibility of mitochondria? The name of stain is Janus green B. Remember, the name of stain for the visibility of mitochondria is Janus green B. So they are when they are stained up, clearly visible in the microscope, and their number, their shape, their size per cell is variable depending on the cell, depending on the physiological activity of cell. Remember, those cells which are more active, metabolically active, having more mitochondria in it, because they require ATP, and that cell require active process to work, and that's why mitochondria is one of the cell organelles play important role in the cells. Okay, so those cells which are metabolically active having more mitochondria, so their size and shape is also changed according to physiological activity of the cell, and it is generally sausage shaped. Sausage shaped means like that. This is like sausage shaped, okay, or cylindrical, having diameter approximately. Diameter of the mitochondria is 0.2 to 1 micron. Okay, diameter is 0.1 to 1 micron, and length of the mitochondria is generally 0.1. Okay, yeah, 1.1 to 4.1 to 4.1. Okay, that is length. This is the length. And diameter of the mitochondria is generally 0.2 to 1 micron. Okay, so this is about the size. This is the diameter, this is the length. Okay, and inside the mitochondria what they have? Mitochondria, already I told you, consists of two membrane. Outer membrane is generally smooth without any folding, but inner membrane is generally long and having folding, and the folding of the mitochondria is called as cristae. Okay, inside the membrane the folding is called as cristae. So what is the meaning of cristae? Yes, single one is called as crista. Okay, this is outer membrane, this is called as outer membrane of mitochondria, and this is called as inner membrane. Okay, two membranes,
An inner membrane having folding on it, thinner layer structure formed on the inner side is called a cristae, and on that cristae they produce small particles on it. On that cristae they produce small particles. So this is the structure. This is the structure of single crista. This is the structure of single crista, and on that crista there is the formation of small particles is called as F1 particles. Okay, is called as F1 particle, also called as oxysomes. Elementary particles, F1 particles, oxysomes, stocked particles, F0 to F1 particles are the name present on the cristae, and this is about the structure of what? Single crista, and on that crista they will be having many F1 particles, and F1 particle is consist of head, this is base piece, and this is stalk. Okay, base piece, stalk and head are three parts present in the mitochondria, and inside the mitochondria there is the presence of homogeneous proteinaceous colorless structure called a matrix. Okay, also may be called as stroma. Okay, and double membrane bound structure is found in mitochondria. Outer membrane generally somewhat without what? Folding. Okay, and it is somewhat permeable also, and inner membrane is having divided into lumen. Due to presence of outer and inner membrane, they having two lumens. This is called as outer compartments, and this is called as inner compartments. Due to presence of two membrane, mitochondria has two compartments, outer compartments and inner compartments. And remember, inner compartment is also called as matrix. Inner compartments is generally called as aqueous compartment. Aqueous means liquid present in it. So outer compartment and inner compartments are formed, and inner compartment is called as matrix in it. And matrix contain what? Inside the matrix they have ribosomes. Inside the matrix they have ribosome. Which kind of ribosome? 70s type of ribosome. They are also having what? DNA. Okay, small circular double stranded DNA present inside the mitochondria is called as mitochondrial DNA, or called as plasmon. Plasmon, plasmon. Okay, DNA present in the mitochondria is called as plasmon. Okay, and other proteinaceous structure is there. Inner membrane form number of folding called as cristae, and towards the matrix, inner membrane के ऊपर cristae है, matrix की तरफ. Okay, and towards the matrix and they increase surface area. What is the function of cristae? Cristae generally increase the surface area of inner membrane, and that's why more surface area help to form more ATP. Actually, if you remember, in eukaryotic cell, aerobic respiration occur, and in aerobic respiration, three events occur. One is glycolysis, other is Krebs cycle, and third is electron transport system. Now remember, inside the matrix, during aerobic respiration, the process occur called as Krebs cycle. Very important point. During aerobic respiration, oxidation of organic substrate takes place inside the matrix. Second process of aerobic respiration takes place called like Krebs cycles, also called as TCA cycles. Okay, and F1 particle is the place. F1 particle is the place where they perform electron transport systems, also called as terminal oxidations. So the two stages of aerobic respiration, one is Krebs cycle occur inside the mitochondrial matrix, and second is electron transport systems. Okay, actually this is the third steps. This is the second step, this is the third steps, and first step is glycolysis, which occur in the cytoplasm. Okay, we are not discuss about here cytoplasm, we are discuss about mitochondria, and that's why
inside the mitochondria the matrix is present and inside the matrix the Krebs cycle takes place and F1 particle is the place where electron transport system occur, okay, in the aerobic respiration, okay, and that's why the two membrane having their own specific enzymes, both the membrane of mitochondria having their own specific enzymes associate with the mitochondrial functions. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करने के लिए वो दोनों मेम्ब्रेन के अंदर अलग अलग एंजाइम रहते हैं, वो स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं. मैट्रिक्स possess सर्कुलर डीएनए एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो. मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बोला है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं इसको. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं. क्यों? बिकॉज़ दे हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए, बिकॉज़ दे हैव देयर ओन राइबोसोम. तो राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, डीएनए है तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यू प्रोड्यूस करेगा, फ्यूजन करेगा माइटोकॉन्ड्रिया का. ओके, इसीलिए उसको कहा गया है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स. एंड डीएनए इन द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज प्लाज्मोन और एम्प्टी डीएनए कहते हैं. दे आल्सो हैविंग आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम इज 70s टाइप हियर and component for protein synthesis. Remember, ribosome help in the protein synthesis. Okay, and that's why ribosome is called as cell organelles within cell organelles. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो राइबोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसका मतलब एक सेल ऑर्गेनेल्स दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर रहता है, इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स विदिन सेल ऑर्गेनेल्स. ओके, एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फ्यूजन्स. ऑलरेडी मैंने आपको बोला है इसका खुद का डीएनए है, तो डीएनए जब रेप्लिकेशन करेगा तो उसका खुद का क्या होगा? फ्यूजन होगा. व्हाट इज फ्यूजन? ब्रेक डाउन. one mitochondria divides into two is called as fusion. Okay, and the function of mitochondria is they are the site of aerobic respiration. Remember, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. और आपको ये भी पता होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का complete oxidation होता है and one molecule of glucose gives 38 ATP molecules after oxidation with the help of mitochondria. So it is involved in the aerobic respiration and they produce energy in the form of ATP. So they are called as powerhouse of cell. What? Mitochondria is called as powerhouse of cell. Why? Because they have a capacity to produce ATP, adenosine triphosphate produced by them, and the number of mitochondria is variable from cell to cell. Okay, and outer membrane और inner membrane में आपको मैंने फर्क बताया. Okay, and दोनों का लिमिटेड बाउंड्री है. इनर मेम्ब्रेन आल्सो हैविंग क्रिस्टे, जहाँ पे मैंने आपको बोला था इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टल रहते हैं, क्रिस्टल के ऊपर F1 पार्टिकल रहते हैं. F1 पार्टिकल इज कॉल्ड एज ऑक्सीसोम्स. और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ये प्रोसेस होती है कहाँ पे? F1 पार्टिकल के ऊपर. एंड उसके खुद के एंजाइम्स है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. और जो राइबोसोम मैंने आपको बताया था 70s टाइप का है यहाँ पे, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स. क्यों? बिकॉज़ दे हैव देयर ओन डीएनए, बिकॉज़ दे हैव देयर ओन राइबोसोम, सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को. ओके, एंड remember some of it is also called as second largest cell organelles in the animals. Mitochondria is called as second largest cell organelles in the animals and third largest cell organelles in the plants. Animal में second largest cell organelles है और plant में third largest cell organelles है ना. ठीक है, हम बता सकते हैं. और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ओके, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहते हैं. उसी के साथ जो मैंने आपको बोला आरबीसी के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है. प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वहां पे कौन काम करता है रेस्पिरेशन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है. और उसी के साथ साथ यहाँ पे आरबीसी के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है. ओके, मैंने आपको बोला था माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए जो स्टेन यूज करते हैं उसका नाम है जानस ग्रीन बी. जानस ग्रीन बी द नेम ऑफ स्टेन एंड दे आर that is mitochondrial space called as intermembrane space. Perimitochondrial space is called as outer chamber और intermembrane space भी कहते हैं उसको. क्या कहते हैं? intermembrane space कहते हैं. and require for oxidation of fats. okay, जहाँ पे
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो सकता है, फैट का ऑक्सीडेशन हो सकता है। ओके, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और आउटर मेम्ब्रेन इज जनरली परमेबल एंड इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आउटर मेम्ब्रेन इज जनरली परमेबल, इनर मेम्ब्रेन इज जनरली selectively permeable, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, एंड दैट्स व्हाई some of the sessile particle attached on the outer membrane is called as subunit of Parsons। outer membrane के ऊपर कुछ sessile particle attach होते हैं, sessile मतलब विदाउट स्टॉप, उसको बोलते हैं subunit of Parsons बोलते हैं। and outer membrane of mitochondria removed then called as mytoplast। if outer membrane of the mitochondria removed then it is called as माइटोप्लास्ट। उसको माइटोप्लास्ट बोलते हैं कब, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन निकाल दिया गया तो माइटोप्लास्ट बोलते हैं उसको। और इट इज प्रेजेंट इन द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म ऑफ द स्पर्म के, आपको पता है ह्यूमन स्पर्म जो है, ह्यूमन स्पर्म जो है उसका जो मिडल पीस रहता है वहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसको कहते हैं नेविन कर्न। क्या कहते हैं, नेविन कर्न बोलते हैं। ह्यूमन के स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है मिडल पीस में उसको नेविन कर्न बोलते हैं। तो आज मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। कल मैं आपको नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स इज प्लास्टिड्स। सो व्हाट इज प्लास्टिड्स? प्लास्टिड इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द प्लांट्स। Presence of plastid is the peculiar characteristic of plant cells, and plastid has three parts या three types। plastid क्या और तीन टाइप है, कौन कौन से? green plastids called as chloroplast, colorless plastids called as leucoplast, and colored plastids called as chromoplast। तो plastid क्या है? plastid एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट के सेल में रहता है, यूकैरियोटिक सेल ऑफ द प्लांट में रहता है। और प्लास्टिड भी क्या है, इट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। प्लास्टिड भी एक डबल मेम्ब्रेन से बंधा हुआ ओके सेल ऑर्गेनेल्स है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है इसके अंदर। यहां पे भी मैंने आपको जैसे बोला था, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, यहां पे भी आउटर मेम्ब्रेन कैसे रहता है, परमेबल है। और दिस इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और याद रखो और एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन नाम का प्रोटीन रहता है जो एक्वियस एनवायरनमेंट में काम करता है, मतलब वाटर लेने के लिए हेल्प करता है। पोरीन प्रोटीन जो है यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट का और माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, एक बात। दूसरी बात आपको मैंने अभी जस्ट बताई थी आपको कि क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में उनका खुद का डीएनए है ना, तो इसलिए ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या है, डीएनए है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिडोम। द डीएनए इन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज प्लास्टिडोम, एंड दिस प्लास्टिडोम हेल्प इन द fusion of what, chloroplast। chloroplast also has green bodies in it called as grana। inside the chloroplast some of the green bodies is present called as grana green structure is present called as grana। और दोनों ग्राना को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं इंटर ग्राना लैमेले। दो ग्राना को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर उसको इंटरग्राना लैमेले बोलते हैं, या उसी को स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं, या उसी को हम बोलते हैं फ्री चैनल। ठीक है ना। तो एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के अंदर का जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरिस्ट्रोमियम बोलते हैं। पेरी मींस अराउंड एंड स्ट्रोमियम मींस स्ट्रोमा। तो क्या है, ये जो अंदर का जो पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मैकेनिज्म बताया था ना, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वैसे आपको मैं बताने जा रहा हूं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है। दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है, दोनों डे टाइम में होती है। और उसमें से जो लाइट रिएक्शन होती है, ओके, लाइट रिएक्शन जो होती है वो होती है लाइट रिएक्शन ऑकर इन द ग्राना
and dark reaction occur in the stroma. अभी लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, उसका डिटेल स्टडी आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर में है। कौन चैप्टर में? फोटोसिंथेसिस चैप्टर में है। तो आज हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं उसके अंदर मैंने बोला आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ग्रीन पार्ट जो है ग्राना है, उसके बाद स्ट्रोमा है ना, इंटरग्रानल लैमेले है। तो अलग अलग रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, कीमियास्मोटिक हाइपोथेसिस, केल्विन साइकिल, C4 साइकिल, कैम्प पाथवे, ये अलग अलग साइकिल्स जो होती है, रिएक्शन जो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ओके, और फोटो रेस्पिरेशन, ये पूरे एक्टिविटीज कहां पे क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है जो यूकेरियोटिक सेल में है, प्लांट सेल में है। दे आर फाउंड इन द प्लांट सेल एज वेल एज यूग्लिनोइड्स। आपको पता है व्हाट इज यूग्लिनोइड्स? यूग्लिनोइड इज नथिंग बट द यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा जो ऑटोट्रॉप बोल के भी काम करता है और हिटोट्रॉप बोल के भी काम करता है। तो जब यूग्लिनोइड्स क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो उसका मतलब वहां पे क्या रहेगी, क्लोरोप्लास्ट रहते हैं ना यूग्लिनोइड्स। एंड द लार्ज साइज इजीली ऑब्जर्वेबल अंडर द माइक्रोस्कोप। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो उसका स्ट्रक्चर बड़ा है, लार्ज है, इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर आपको मिलते हैं। कौन? क्लोरोप्लास्ट। ओके, और याद रखिए क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि वहां पे फूड बनता है ना। कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में फूड बनता है। कौन सा? ग्लूकोज बनता है। कैसे बनता है? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो वहां पे फूड प्रिपेयर होता है। उसी के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन भी होता है। उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। एटीपी फॉर्मेशन ऑकर इन द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज सिंथेसिस होता है। तो ये दो एक्टिविटी है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको बोला ग्राना। ओके, ग्राना में क्या रहता है? अगर ग्राना का स्ट्रक्चर आप डिटेल में देखोगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राना। ओके, ग्राना में क्या रहता है बेटा? ग्राना के अंदर जो पाउच है उसको बोलते हैं थैलाकोइड्स। ओके, इनसाइड द ग्राना सिंगल ग्राना इज कॉल्ड एज ग्रानम। ग्रानम, और ग्रानम के अंदर क्या है? थैलाकोइड है। और थैलाकोइड के अंदर क्या है? थैलाकोइड के अंदर क्या है? क्वांटासोम है। क्वांटासोम है। एंड रिमेंबर क्वांटासोम इज कॉल्ड एज photosynthetic unit. Chloroplast is called as photosynthetic apparatus. Chloroplast is also called as photosynthetic apparatus. Quantosome is called as photosynthetic unit. क्यों? क्योंकि क्वांटोसोम के अंदर आप अगर देखते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्वांटोसोम। ये किसका स्ट्रक्चर है? क्वांटोसोम का स्ट्रक्चर है। अगर क्वांटोसोम का स्ट्रक्चर आप देखते हो तो क्वांटोसोम में क्या रहता है? सेंटर में रहता है क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स। सेंटर में क्या रहता है? क्लोरोफिल ए पिगमेंट है। और क्लोरोफिल ए के बाहर बाकी के पिगमेंट रहते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? कहां पे? क्वांटोसोम में। तो एक्चुअली क्वांटोसोम के अंदर क्या होती है? पिगमेंट रहते हैं। कौन से? क्लोरोफिल ए और एक्सेसरी पिगमेंट्स, और उसको हम बोलते हैं फोटोसिस्टिन्स। क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टिन्स। जहां पे क्या होता है? लाइट एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है, एटीपी में होता है, इसलिए उसको बोलते हैं फोटोसिस्टिन। और एक बार रिपीट कर रहा हूं शॉर्टकट में। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन बॉडीज है, उसको बोलते हैं ग्राना। ग्राना के अंदर सिंगल ग्राना, ग्रानम है। ग्रानम के अंदर सिंगल पाउच थैलाकोइड है। थैलाकोइड के अंदर ग्रीन सैक जो है, स्मॉल सैक जो है, उसको बोलते हैं क्वांटोसोम। और क्वांटोसोम के अंदर आप देखते हो तो सेंटर में क्या है? क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड एज एसेंशियल पिगमेंट। क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड एज मास्टर मॉलिक्यूल्स। ओके, और क्लोरोफिल क्या है? ये क्या है? यूनिवर्सल पिगमेंट है, बिकॉज क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल पिगमेंट। जितने भी फोटोऑटोट्रॉप है उन सभी के अंदर क्लोरोफिल ए होता ही है, इसलिए उसको यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं। और ये क्या करते हैं?
फोटोसिंथेसिस करते हैं और लाइट एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करते हैं प्यार से, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन मैंने आपको बोला। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स है वो उसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द पिगमेंट कौन से टाइप के हैं, कौन से कलर के हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट के 3 टाइप बनते हैं, या सॉरी प्लास्टिड के 3 टाइप बनते हैं। Plastids are classified into 3 types. Which are the 3 types? One is chloroplast, also called as green plastids. Chloroplast is called as green plastids. Second is chromoplast. Chromoplast is called as colored plastids. And third is leucoplast. Leucoplast is called as colorless plastids. So according to this pigments present in that plastids, उसके 3 टाइप बन गए, chloroplast, chromoplast and leucoplast. Okay, so what is chloroplast? They contain green pigment, chlorophyll pigment, okay, as well as carotenoids, that is orange colored pigments, okay, and they trap light energy for photosynthesis. कौन? chloroplast क्या करते हैं, क्लोरोफिल है उसके अंदर, कैरोटीनॉइड है, इसलिए वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी ट्रैप करने की हेल्प करते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट कंटेन सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स एज वेल एज पिगमेंट लाइक कैरोटीन। ओके, क्रोमोप्लास्ट कहां रहता है फिर, या फिर क्लोरोप्लास्ट कहां रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है लीफ में और ब्रीज स्टेम में। क्लोरोप्लास्ट कहां रहेगा? लीफ में और ब्रीज स्टेम में। क्रोमोप्लास्ट कहां रहेगा? क्रोमोप्लास्ट रहेगा फ्लावर में और फ्रूट में, जहां पे अलग अलग कलर के फ्रूट फॉर्म होते हैं, और वहां पे पिगमेंट कौन से है? कैरोटीनॉइड्स है, कैरोटीन है, कैरोटीन ऑरेंज कलर का है, xanthophyll येलो कलर का है। सो दे गिव्स येलो, ऑरेंज, रेड कलर टू द प्लांट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, राइट? क्रोमोप्लास्ट। थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट. Leucoplast is called as colorless plastids and they vary in the shape and size and they store nutrients. पोटैटो के अंदर, बनाना के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ल्यूकोप्लास्ट है। और ल्यूकोप्लास्ट के और 3 टाइप है, ल्यूकोप्लास्ट और 3 टाइप है। कौन से? नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट के टाइप बताने जा रहा हूं मैं आपको बताने जा रहा हूं। ल्यूकोप्लास्ट के टाइप जो है, पहला है अमाइलोप्लास्ट। Amyloplast. Remember, amyloplast is the type of leucoplast which store carbohydrate like starch. For example, potato के अंदर आपको पता है जो व्हाइट कलर का पार्ट रहता है अंदर, that is nothing but the starch. तो amyloplast के अंदर starch है। Second is number 2 is elioplast. इलियोप्लास्ट। ओके, ये क्या करता है? ऑयल स्टोर करता है। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता था? स्टार्च। इलियोप्लास्ट क्या करता है? ऑयल स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है। और लास्ट टाइप में आपको मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज एलिरोप्लास्ट। एलिरोप्लास्ट आपको पता होगा, एलिरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। ओके, एलिरोप्लास्ट इज द लेयर व्हिच स्टोर प्रोटीन। ओके, आपको पता होगा जो मेज सीड है उसके अंदर एंडोस्पर्म रहता है, एंडोस्पर्म का जो कवर रहता है उसको एल्वेओलर लेयर बोलते हैं। तो एल्वेओलर लेयर जो है वो कलरलेस रहता है, उसके अंदर प्रोटीन स्टोर होता है। ओके, सो दिस इज द स्टोरेज। और क्लोरोप्लास्ट जो है, दिस आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डायग्राम तो मैंने आपको बता दी पूरी। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द प्लांट्स। लीव्स के अंदर जो मेसोफिल सेल है, जिसको हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं लीफ का, These are lens shaped or oval or spherical and discoid shaped. साइज जो है इसका अलग अलग होता है, ओवल है, डिस्कॉइड है, स्फेरिकल है, रिबन लाइक है, स्पाइरल भी है। किसमें? स्पाइरोगारा में। स्पाइरोगारा में क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल रहता है। एंड लेंथ जो है इसकी लेंथ 5 to 10 माइक्रोन। लेंथ कितनी है? 5 to 10 माइक्रोन है लेंथ। और विड्थ कितनी बोला मैंने आपको? विड्थ जो है दैट इज 2 to 4 माइक्रोन। ओके, दिस इज द साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड द नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेडोमोना जो है, जिसको हम ग्रीन algae बोलते हैं, जिसके अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्लाइमेडोमोना जो ग्रीन algae है उसके अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट यूनिसेलुलर है, और कुछ सेल के अंदर
20 to 40 पर सेल में रहते हैं ना, मेसोफिल सेल के अंदर जो ग्रीन प्लांट के सेल में है ना, ग्रीन लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल रहते हैं वहां पे 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट रहते हैं एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हैज permeable. Okay, inner membrane of the chloroplast is permeable, so less permeable. Outer membrane is permeable. Outer membrane permeable है, inner membrane less permeable है, and the space limited by the inner membrane and chloroplast is called as stroma. Inner membrane के अंदर का जो स्पेस है ना, inner membrane के अंदर का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं. और स्ट्रोमा के अंदर क्या है? स्ट्रोमा कंटेन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए कॉल्ड एज प्लास्टिडोम. स्ट्रोमा के अंदर क्या रहता है? 70s टाइप के राइबोसोम भी है. राइबोसोम मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, राइबोसोम 70s टाइप के रहते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में थे वैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम है. इसलिए क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स. क्यों? क्योंकि इसका भी खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है, इसलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करते हैं. एंड organized flattened membrane called as sac-like thallopoids. क्लोरोप्लास्ट में ग्राना, ग्राना में ग्रानम, ग्रानम के अंदर फ्लैट जो सैक है उसको थैलाकोइड बोलते हैं. और थैलाकोइड का जो ल्यूमेन है अंदर का कैविटी बोलते हैं उसको हम. तो उसके अंदर ग्रीन सैक है उसको बोलते हैं क्या? थैलाकोइड के अंदर पांटोसोम है और पांटोसोम के अंदर पिगमेंट फॉर्म होता है. कौन सा? क्लोरोफिल. ओके, ग्रीन पिगमेंट फॉर्म होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. थैलाकोइड अरेंज्ड इन द sac-like structure called as grana. और दोनों ग्राना के अंदर का स्ट्रक्चर जो उसको इंटरग्रानल लैमेला बोलते हैं, बताया मैंने आपको. ओके, जहां पे अलग अलग रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट में. स्ट्रोमा लैमेला याद रखिए, स्ट्रोमा लैमेला के अंदर होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. ये जो बोला ना मैंने आपको इंटरग्रानल लैमेला जिसको हम स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं, जिसके अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है. ओके, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है. और एक बार बोल रहा हूं, एग्जाम में पूछा था इंटरग्रानल लैमेला जिसको हम स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं, जहां पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है रिएक्शन. और ये जो ग्राना लैमेला है, ग्राना लैमेला है. ओके, उसके अंदर क्या होता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होती है जो लाइट रिएक्शन में आते हैं दोनों. और स्ट्रोमा कंटेन स्ट्रोमा के अंदर क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, एंजाइम भी है, सिंथेसिस फॉर द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स. स्ट्रोमा के अंदर अलग अलग एंजाइम फॉर्म होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं. स्पेशली आपको मैं बताने जा रहा हूं, स्ट्रोमा के अंदर जो एंजाइम है जो डार्क रिएक्शन में हेल्प करते हैं उसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, रूबिस्को. RUBISCO, रूबिस्को, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज abundant protein in the biosphere बोलते हैं, या फिर abundant protein in the plant world बोलते हैं जिसको रूबिस्को को. या फिर और एक पिगमेंट प्रोटीन रहता है, हार्मोन रहता है. कौन सा? पेप कार्बोक्सिलेज. ओके, तो ये एंजाइम रहते हैं कहां पे? स्ट्रोमा के अंदर जो डार्क रिएक्शन के हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं. एंड राइबोसोम जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s टाइप का है और साइटोप्लाज्म में जो है 80s टाइप का है. ठीक है ना? क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको मैंने इंफॉर्मेशन बता दी है. So this is about all information about the chloroplast. ठीक है ना? और स्ट्रोमा लैमेला है, ल्यूमेन है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है और कपलिंग फैक्टर भी होता है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के साथ कपलिंग फैक्टर करने के लिए हेल्प करता है. मैंने आपको बोला था क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर पोरिन नाम का प्रोटीन रहता है जो एक्वेस पोरिन रहता है. और एंजाइम भी बोला मैंने आपको, रूबिस्को फॉर्म 16% ऑफ द प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट. रूबिस्को जो है मैंने आपको बोला क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर रहता है. वो 16% प्रोटीन फॉर्म होता है. कहां पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मतलब सबसे ज्यादा होता है. और अगर आपको डिफरेंस बताना है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको डिफरेंस बताना है तो क्या बता सकते हो? ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जनरली कलरलेस, क्लोरोप्लास्ट जनरली कलर्ड. एक, देन माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. दो. Okay, then mitochondria present in plants and animal cell, chloroplast only present in plant cell. 3. Okay, ऐसे डिफरेंस आप बता सकते हो. Then mitochondria present in all eukaryotes, then chloroplast present in only plants. Okay, generally mitochondria cylindrical outline है
क्लोरोप्लास्ट की डिस्क-लाइक आउटलाइन है, माइटोकॉन्ड्रिया में पिगमेंट एब्सेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, कौन से, क्लोरोफिल, कैरोटीन जैसे, ओके। देन माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, लाइट एनर्जी कैप्चर करके उसका कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करता है, एटीपी में ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, कौन, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, क्लोरोप्लास्ट एनाबोलिज्म करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैटाबोलिज्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन करता है मतलब कैटाबोलिज्म करता है, क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन करता है, सिंथेसिस करता है मतलब एनाबोलिज्म करता है। ये भी डिफरेंस है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में होता है, कहां पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी फॉर्मेशन कहां होता है, लाइट रिएक्शन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी फॉर्मेशन कहां होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, ठीक है ना, लिबरेट एनर्जी। देन मैंने आपको ऑलरेडी बोला। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया का काम रिस्पिरेशन में है, क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस में है। सो ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, ओके। कहां पे, प्लांट सेल के अंदर, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट में भी है, एनिमल में है, और क्लोरोप्लास्ट जो है ओनली प्लांट में है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, ओके। यहां तक मैंने आपको डिस्कशन किया है। नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू टुमारो। इतना पार्ट आपको मैंने आज डिस्कस किया है, क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Called the powerhouse of the cell, mitochondria are sites of aerobic respiration and produce cellular energy in the form of ATP. The number of mitochondria in a cell varies depending on the cell's metabolism. Muscle cells, for instance, need a continuous supply of energy and hence they contain a large number of mitochondria. Microscopic studies have revealed that a typical mitochondrion, which divides by fission, is sausage-shaped or cylindrical, with a diameter of 0.2 to 1 microns and a length of 1 to 4.1 microns. It is a double membrane bound structure consisting of an outer membrane and an inner membrane, and each membrane has its own specific enzymes associated with the mitochondrial function. The membranes divide the mitochondrial lumen into two aqueous compartments, the outer compartment and the inner compartment called the matrix, that contains a single circular DNA molecule, a few RNA molecules, 70 S ribosomes, and the components required for the synthesis of proteins. While the outer membrane forms a continuous limiting boundary, the inner membrane folds towards the matrix to form infoldings called cristae. These cristae increase the surface area of the inner membrane of the mitochondria. Apart from ribosomes and mitochondria, plastids are also one of the most important cytoplasmic organelles in plants. They are bound by a double membrane and contain pigments that impart specific colors to plants. Based on the pigments they possess, plastids can be classified as chloroplasts, chromoplasts, and leucoplasts. Chloroplasts contain chlorophyll and carotenoid pigments that capture light energy needed for photosynthesis. Moreover, chlorophyll also imparts a green color to the leaves. Found mostly in the mesophyll cells of the leaves, chloroplasts have a length of 5 to 10 millimeters and a width of 2 to 4 millimeters. A cell can contain a single chloroplast, as seen in Chlamydomonas, or multiple chloroplasts, as seen in a green alga cell.
Morphological studies about chloroplast reveal that they possess an outer membrane and an inner membrane, with the inner membrane being less permeable than the outer membrane. Stroma, the space enclosed by the inner membrane, contains double-stranded circular DNA molecules, 70S ribosomes, and enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. Stroma also contains thylakoids, flattened membranous sacs containing chlorophyll pigment in their lumen, the space enclosed by the thylakoid membranes. Around 20 to 50 thylakoids are stacked like piles of coins, forming grana or intergranal thylakoids. The thylakoids of different grana are connected to each other by flat membranous tubules called stroma lamellae. Did you know that chloroplasts as well as mitochondria are known as semi-autonomous organelles as they possess their own DNA? Chromoplasts, another type of plastids found in plant cells, contain fat-soluble carotenoid pigments such as carotene and xanthophylls that give red, yellow and orange color to plant parts. The third type of plastids, leucoplasts, are colorless plastids that store nutrients such as carbohydrates and fats. Based on the type of nutrient stored, leucoplasts can be classified as amyloplasts, eleoplasts, and aleuroplasts. While amyloplasts store carbohydrates such as starch in potato, eleoplasts store oils and fats. On the other hand, aleuroplasts, which are usually found in food grains, store proteins. The various plastids found in plants not only impart color to the plants, but also store nutrients and play a role in photosynthesis. Thus we find that ribosomes, mitochondria, and plastids are important organelles taking part in vital functions of the cell, such as protein synthesis, respiration, and photosynthesis. Of the various organelles found in a cell, the nucleus occupies a place of prime importance.